آپ لوگ بڑے مایوس لگ رہے ہیں. آپ کے چہرے پہ مجھے کوئی رونق نظر نہیں آ رہی ہے. آج کوئی الیکشن کا وقت نہیں ہے. آج ہم کوئی ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اپنے ورکر کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. پچھلے 1-2 مہینے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. پہلے کشمیر میں گئے اور اب یہاں پونچھ آئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عام لوگ ڈپریشن میں ہیں, مایوس ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, دم گھٹتا ہے, بات کر نہیں پاتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ مشکل جو اس وقت ہے وہ نوجوانوں کی ہے. بے روزگاری نے یہاں کے لوگوں کی, ماں کی, باپ کی, خاندانوں کی کمر توڑ دی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے, نوجوان کو جا کے ماں سے چوری چوری کرایہ مانگنا پڑتا ہے, باپ نہیں دیتا ہے, باپ غصہ کرتا ہے. اس بے روزگاری کا اثر سارے گھر پہ ہے. اور جب یہ نوجوان ڈپریس ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, تو ڈرگز کھانا شروع کرتا ہے, شراب پینا شروع کرتا ہے, خودکشی کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اور اس کا سارے گھر پہ, سارے معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے. اور یہ بیماری آج پورے جموں کشمیر میں پھیلی ہوئی ہے. ہم شکر گزار ہیں ایل جی صاحب نے اس کا نوٹس لیا, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, مگر ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے مایوسی کفر ہے. کہتے ہیں مایوس ہونا کفر ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ نے دیکھا ایران, ایک چھوٹا سا ملک, سامنے امریکہ, کیسے لڑا وہ؟ کیوں لڑا وہ؟ کیونکہ جب آپ جرأت رکھیں گے, طاقت رکھیں گے, ہمت رکھیں گے, تو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو آج کا وقت ہے, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, بیکاری کا دباؤ ہے اوپر سے. اگر کوئی نوجوان کوئی پوسٹ لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ, شام کو پولیس بلاتی ہے, نظر رکھی ہوئی ہے ہماری مسجدوں میں, اور بھی ہے وہ کیا بولے گا, کیا کرے گا, اس کا سارا حساب کتاب رکھا جاتا ہے. مگر یہ وقت بھی نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہوگا, میں بار بار پیچھے نہیں جانا چاہتی, 2002 سے پہلے بھی حالات بہت خراب تھے. جب ہم لوگوں کو بولتے تھے ہم آپ کو اس بگار سے نکالیں گے, بگار کے لیے لے جاتے تھے لوگوں کو, یاد ہے نا آپ کو؟ گھر میں کیا ہوتا تھا, اگر کشمیر میں کچھ ہوتا تھا وہاں شور مچتا تھا, مگر جب پیر پنچال, راجوری, پونچھ میں زیادتی ہوتی تھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. مگر ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ پی ڈی پی آئے گی, حالات کو درست کریں گے. اسی طرح میں آج آپ لوگوں کو وعدہ دلانا چاہتی ہوں. بے روزگاری اس وقت بھی تھی, مفتی صاحب آئے, لاکھوں رہبر تعلیم ٹیچر لگائے, ہے نا؟ آج وہی روزی روٹی کما رہے ہیں نا, وہی نوجوان, وہ گاؤں کا, دور گاؤں کا, جس کی کبھی باری ہی نہیں آتی تھی, 12ویں جماعت پاس, 10ویں جماعت پاس رہبر تعلیم ٹیچر. اس لیے مایوس مت ہو جائیے, ہمت رکھیے, حوصلہ رکھیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا پانی یہاں تک پہنچ گیا ہے. مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے. بجلی فیس جو پہلے 500 آتی تھی آج 3000 ہے نا. گیس اگر 400 روپے میں ہوتا تھا آج 1000 روپے میں ہے. مطلب جینا حرام ہو گیا ہے. دال روٹی کھاتے تھے, آج دال روٹی بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. اس لیے 2.25 سال ہو گئے سرکار کو, ہم 2 سال خاموش رہے. میں نے اپنے لوگوں کو بولا ہم نے مخالفت نہیں کرنی ہے نیشنل کانفرنس کی, ان کو وقت دو, ان کو 6 مہینے دو, ان کو سال دو, ان کو 1.5 سال دو, ہم دیکھیں گے یہ کیا کریں گے. اتنا بڑا مینڈیٹ ہے, 50 MLA ہیں, اتنے انہوں نے وعدے کیے ہیں. حالات بہت مشکل ہیں, ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں اور دیکھیں گے کیا کریں گے. ہاہاکار مچی ہوئی ہے, نوکریوں سے ملازموں کو برخاست کیا جاتا ہے, عمر صاحب خاموش. ہماری مسجدوں پہ نظر رکھی جاتی ہے, عمر صاحب خاموش. ہمارا سراج علوم جیسا سکول
जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, कम फीस में अच्छी तालीम मिलती थी, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, उस स्कूल को बंद किया, उमर साहब खामोश। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उमर साहब खामोश। मगर क्या करते हैं? चोरी चोरी चुपके चुपके मुलाजिम लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे लगा रहे हैं। ठेके पे देते हैं कि भाई आपको 5,000 मुलाजिम लगाने हैं इस डिपार्टमेंट में, आपको कमीशन देंगे, मगर लिस्ट हम देंगे। और कौन देता है लिस्ट? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, इनके मिनिस्टर। और ये तो पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी मिलने वाली है, वो कहां से मिलेगी? जबकि ये चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं। ट्रांसफर करनी हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तब जाके ट्रांसफर होती है अफसरों की। तो यानी जिस आदत जो इनकी आदत थी, उससे ये लोग बाज नहीं आए। मगर मैं आपको कहना चाहती हूं, मुफ्ती साहब ने हमें एक नक्शा दिया जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने का। आपको जोड़ा मुगल रोड से, टनल आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी, जब मैं वजीर आला थी, मैंने गडकरी साहब से बात की थी ताकि आप 2 घंटे के अंदर कश्मीर पहुंच जाओ। हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज देखिए उसका क्या हाल है। क्या ये उमर साहब का फर्ज नहीं बनता है कि वो देखे, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहां रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? वहां लेक्चरर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है वक्त पे? वहां परमानेंट प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये तो महबूबा मुफ्ती का काम नहीं, ये तो उनका काम है। कुछ नहीं देखते हैं। मगर मैं आप लोगों को बनाना चाहती हूँ, हमारे गरीब, जैसे अभी वहीद साहब ने बताया, हमने एक बिल लाया था। ये जो गरीब हैं, घास चराए पे, कई ट्राइबल है, हमारे गुजर भाई हैं, कई 5 मरले 10 मरले पे कोई कोठा, कोई घर बनाते हैं, इनका बचाव कीजिए, इनको वहां से खदेड़िए मत, इनके मकान मत तोड़िए। मगर उमर साहब ने कहा, जो कश्मीरी के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये लैंड ग्रैबर हैं, यानी जमीन पे नाजायज कब्जा करते हैं। मगर जब होटल वालों की बात आई, बिल पास कर दिया। हम होटल वालों के खिलाफ नहीं है, मगर गरीब के साथ अमीर दोनों को आगे चलाने की जरूरत है। हमने डेली वेजर्स के लिए बिल लाया, हजारों डेली वेजर पीएचई, इरिगेशन, आरएनबी, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। हमने कहा इनको रेगुलर करो, ये गरीब आदमी है, पर नहीं किया। हमने एक बिल लाया कि आपने 2019 में जम्मू कश्मीर लोगों से सब कुछ छीन लिया, मगर उसमें सबसे ज्यादा असर जो है वो पीर पंचाल और चिनाब वैली के लोग कटे हुए हैं। इनको अपना डिवीजन दो, यहां डिविजनल कमिश्नर को बिठाओ, ताकि आपको जम्मू, आपको श्रीनगर न जाना पड़े अपने काम करने के लिए। हमने कहा मेंढर को हिल डिस्ट्रिक्ट दो, वो एक अलग थलग इलाका है, ताकि वहां के लोगों की आसानियां पैदा हो, मगर नहीं किया। मगर आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जो मुफ्ती साहब का नक्शा था, हमने रावला कोट खोला, हमने कहा हमारे लोग बिजनेस करेंगे, यहां से कोई चीज जाएगी, वहां से बंदूक नहीं आएगी, वहां से पैसा आएगा। वो रावला कोट रास्ता भी बंद। मगर मैं आप सब वर्करों को बताना चाहती हूं कि मुफ्ती साहब के नक्शे के बगैर जम्मू कश्मीर के मसले का कोई हल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं ना, कहते हैं ना, मगर क्या आपको पता है आज भी पिछले 3 महीने से चोरी चोरी चुपके चुपके पाकिस्तान के साथ बात चल रही है? पता है आपको? जो रिटायर्ड डिप्लोमेट है, जो रिटायर्ड जनरल्स है, दूसरे लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठ के बात करते हैं। काश ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर से पहले की होती, तो हमारे सरदार भाई वो शहीद हो गया, वो जो एक जुड़वा भाई बहन थे जोया और जैद, वो शहीद हो गए, वो अपने आंगन में माँ बाप के खेल रहे होते। कितने बर्बादी हुई।
मगर मुफ्ती साहब कहते थे कि कुछ भी करे बीजेपी, आखिरकार इनको टेबल पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूं, आप मायूस मत हो जाए, इत्मीनान रखो। पानी यहां तक जरूर आया है, मगर सर बाहर रखो, ये पानी खुद नीचे चला जाएगा वक्त आने पे। नौजवानों को मैं कहती हूं, अभी पंचायत के इलेक्शन है, हमारे बुजुर्ग हमारे नौजवानों के सर पे हाथ रखे और उनको बोलो ड्रग की तरफ मत जाओ, गलत कामों की तरफ मत जाओ। पंचायत में 5 सरपंच के इलेक्शन लड़ो और लोगों की खिदमत करो, इससे बड़ा और क्या कारनामा हो सकता है। इसलिए आज जब मैं यहाँ आई, मुझे पूंछ आना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी यहाँ आई, तब आती थी साबजिया क्या, लोरन क्या, फतेहपुर क्या, जहां मैं जाती थी क्योंकि वहां बड़े मुश्किल हालात होते थे। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आज भी हालात मुश्किल है, मगर अगर आप अपनी जमात को मजबूत करोगे, पंचायत में मजबूत करोगे, लोकल बॉडीज में मजबूत करोगे। यहाँ हमारा शमीम गनाई है, ये मेरे साथ खड़ा रहा, जब मेरी पार्टी टूटी, लोग चले गए, ये मेरे साथ खड़ा रहा। राजौरी की ये जो टीम है, ये मेरे साथ खड़ी रही, इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो आने वाला वक्त आप लोगों का है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मगर मैं आपके चेहरों पे मायूसी नहीं देखना चाहती। ये जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनकी कमर महंगाई ने तोड़ दी है, ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा, वक्त बदल जाता है, वक्त बदल जाएगा। आज उर्दू जबान के ऊपर उमर साहब ने ऑर्डर निकाला कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी या कोई और मुलाजिम लगेगा, वो सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, उर्दू में नामो निशानी नहीं। तो मुझे बताइए, हम यहाँ एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, मगर हमारी जबान में उर्दू है, हमारी मजहबी किताबें उर्दू में हैं। ईरान का इतना बड़ा सानिया हुआ, उमर साहब ने मुंह नहीं खोला। खामनई साहब को शहीद किया, उमर साहब ने मुंह नहीं खोला। हमारे वक्फ बिल आ गया, उमर साहब ने जबान नहीं खोली। हमारी मस्जिदों के लिए ऑर्डर आए कि हमें मस्जिदों के इमामों का नाम बताओ, टेलीफोन नंबर बताओ, बाकी बताओ, उमर साहब जबान नहीं खोलते हैं। बेरोजगारी आसमान छू गई है, उमर साहब खामोश है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आपने पहले भी इनको आजाया। फारूक साहब के टाइम में इनके पास 60 सीटें थी, जब पोर्टल आया, टास्क फोर्स लाया, आज इनके पास 50 सीटें हैं। आज भी ये सिर्फ अपना काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। मगर आप अपनी जमात को मजबूत कर लीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त होगा वो वैसा ही होगा जैसे मुफ्ती साहब ने ख्वाब देखा था कि जम्मू कश्मीर को, राजौरी, पुंछ को, इस रियासत की, मैं तो रियासत ही कहूंगी, इसकी अव्वल दर्जे की जगह, अव्वल दर्जे का डिवीजन बनाना है। और इंशाअल्लाह डिवीजन भी देंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट भी देंगे, क्योंकि उसकी जरूरत है। अगर यहाँ के लोगों को ताकत देनी है तो राजौरी, पुंछ में डिवीजन होना बहुत जरूरी है, मेंढर में हिल डिस्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ जो नौजवान है उनसे भी कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। ईरान की तरफ देखो, कैसे उसने अमेरिका जैसे मुल्क को अपनी हिम्मत से झुकाया। हम भी अपनी जो हमारी मुश्किलात हैं, अपने हिम्मत से उन मुश्किलात को झुकाएंगे और मिलके, रल मिलके हम जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जो मुंतजमीन है, हमारे जोन प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मेंढर से हमारे नदीम साहब, वसीम साहब आए हैं, जावेद साहब आए हैं।